वेलकम टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के चैप्टर 2 में दैट इज फेडरलिज्म। जैसे कि क्लास 10th का चैप्टर 2 फेडरलिज्म पॉलिटिक्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 10th में अवेलेबल है। आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फेडरलिज्म में आइएगा, क्योंकि चैप्टर इंटरलिंक्ड है। आप उसको नहीं देखेंगे तो ये चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए before watching this, please watch the chapter 1's videos. Then let's start. What is federalism? Federalism is a structure of government, right, which is vertically power sharing. We have discussed in the previous chapter. There are the form of power sharing we have discussed. One is horizontal and the vertical. Federalism is form of vertical power sharing in the country. They are known as federal countries, right? So let's enter into chapter. We will come to know briefly about this chapter, right? So before entering into this, let's see what are the topics we are going to complete, or we are going to what we say is no, we are going to learn, right? That is overview, introductions, what is federalism, difference between unitary system, federal system, Indian federations, key features of federalism, different route through which federations can be formed, what makes India a federal country, list of jurisdictions, वो सब इसके अंदर ही आएगा, हम डिस्कस करेंगे। Then how is federalism practiced especially in India and decentralized in India, we will discuss. Then next, let's start overview. As we have studied in the power sharing, chapter 1 power sharing, there we have seen that there is a form of power sharings are required in the modern democracy. If we say the country is democratic, there should be power is what shared. If power is not shared, then that will be not called as a pure democratic country. So in the previous chapter, as we have studied, there is a vertical level of power sharing, which is what central state and central, state and local government. There are the three terms of power sharing which we have seen. Sorry, the second form of power sharing we have discussed. The same is known as what? Federalism. It is mostly commonly referred as what? Federalism. And the rest of the chapter tries to understand theory of practice of federalism in India. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पूरे फेडरलिज्म कैसे भारत में प्रैक्टिस होता है। Then the discussion of federal constitutional provisions is followed and analysis and policy of political strengthening federalism in practice. That means the constitution में कौन सा provision है, policy कौन सा हम लिए हैं जो federalism को strengthen करने के लिए. That is in brief we will discuss in this chapter. Toward the end of this chapter, we turn into local government and new and third tier of Indian federalism. We will discuss in the end of the chapter. Then let's move to the introductions. In the chapter 1, you have learned that the division of power among the different level of government is one of the major form of power sharing in the modern democracy. In this chapter, we will understand theory and practice of federalism in India. Toward the end of this chapter, the same things we will come to know. Right? Then learning objectives. What you will learn from this chapter. Understand the nature of federalism and its various types. You will understand what is the federalism and its types. Learn about the structure of state and local governments compared to the national government. हम state government का structure क्या है, local government का structure क्या है, हम इसको compare करेंगे central government जिसको हम national government बोलते हैं. Then develop a knowledge of historical progressions of federalism in India. हमारे भारत में federalism कैसे develop हुआ है, कैसे practice किया गया है, उसका एक brief knowledge हम लेंगे. Examine the way in which the Supreme Court has determined the status of balance of power among the different level of government. Supreme Court कैसे एक balance of power क्या determine करता है, उसके बारे में थोड़ा इस chapter में हम देखेंगे. Then federalism क्या होता है? What is federalism? Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. मतलब यहाँ पे बात आती है central authority मतलब central government, then state government, then various form of government. कई ऐसा एक country जिसमें power more than one government में share हुई होती है, या जो गवर्नमेंट की टायर होती है मोर देन वन होती है, उस टाइप ऑफ कंट्री को हम
फेडरल कंट्री या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। अब फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बोथ दिस लेवल्स गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट और अदर। और एक चीज आता है फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो दो गवर्नमेंट होते हैं, जो सेंट्रल में एक होते हैं और स्टेट में एक होते हैं, दोनों क्या करते हैं, इक्वल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग होता है, उसका जितना पावर है इसका भी उतना ही पावर है। मगर जो और कुछ फेडरल कंट्रीज होते हैं जिसमें सेंट्रल को ज्यादा पावर होता है, जिसको हम यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं, आगे हम देखेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट में उतना पावर उसको नहीं होता है, स्टेट्स को उतना पावर नहीं हो सकता है। फेडरल कंट्री में दोनों को इक्वल पावर होते हैं, राइट। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट that look after much of the day to day administration of the state, that means सेकेंड लेवल का जो गवर्नमेंट होता है वो अपने स्टेट का वो देखते रहते हैं कैसे क्या चल रहा है। उसके बाद हमारे जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में कुछ फेडरल कंट्रीज हैं, जैसे जो ग्रीन कलर का इसके बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, वो सब कंट्री में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो सब कंट्री में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों है। वैसे ही यहाँ पे आपको मेंशन की गई है ये जो फेडरल कंट्रीज हमारे जो वर्ल्ड में है, ये फेडरल कंट्रीज के नाम आप लोगों को दिए गए हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री वर्ल्ड में है जो क्या है, फेडरल कंट्रीज हैं। क्या है, फेडरल कंट्रीज हैं। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद unitary government and the federal government, difference between unitary system of government and federal government, the place its power is one central of government। आप अच्छे समझना, हर एक कंट्री में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो ये क्या होता है, जिस कंट्री में पावर सिर्फ सेंट्रल कंट्री में ही, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, मतलब देखो कंट्री में पावर शेयरिंग होता है कैसे, स्टेट सेंट्रल होता है, फिर स्टेट होता है और लोकल गवर्नमेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। ये वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग में कुछ ऐसे कंट्रीज है जिसमें क्या होता है कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल तो बटे हुए हैं, मगर पावर क्या होता है, सेंट्रल के पास ज्यादा होता है। पावर सेंट्रल ही डिसाइड कर सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि प्लेस इट्स पावर इन द वन सेंट्रल गवर्निंग सिस्टम्स, very little political powers exist outside the central government. The power of this government system are uniformly applied throughout. All major government decisions are made by the central government. If smaller government units are established, they are controlled by the central government and can be abolished such without their consent. State government को बिना पूछे central अपना decision ले सकता है। Many unitary governments are there dictatorship or what टोटलिटेरियन। आप समझ रहे हो कि जो डिक्टेटरशिप होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसे बहुत हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, उसको हम डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं। फ्रांस ऑल्दो डेमोक्रेटिक इज गवर्न बाय द यूनिटेरियन बॉडी। आप समझो फ्रांस डेमोक्रेटिक है मगर इसका क्या है, जो हेड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। कुवैत, सऊदी अरब, बारबाडोस, मोरक्को एंड स्पेन आर द एग्जांपल ऑफ यूनिटरी मोनार्क गवर्नमेंट। चाइना, अफगानिस्तान, इटली, जिम्बाब्वे एंड यूक्रेन आर एग्जांपल ऑफ यूनिटरी रिपब्लिक गवर्नमेंट। वो यूनिटरी मोनार्क गवर्नमेंट एंड यूनिटरी रिपब्लिक गवर्नमेंट के बीच में आपको फर्क पता चल गया होगा। इसमें जो डिक्टेटर होता है वो है, और यूनिटरी रिपब्लिक जो होता है इसमें सेंट्रल का पास पूरे पावर रहते हैं। और ये कंट्रीज में क्या है, सेंट्रल के पास पावर रहते हैं और बिना किसी को पूछे वो डिसीजन लेते रहते हैं। ये दो तरह के यहाँ पे आ गए। अब दूसरे में जब पहुंचते हैं, दूसरा क्या है, the federal governing system distribute power from the national government to the local state government and adopt law are the responsible to the country as whole and the locality। जो भी लॉ बनता है वो सबके लिए बनेगा, मगर यहाँ पे क्या है कि ये पावर ऊपर से लेके नीचे तक क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। पावर में भी डिफ्यूज इन द फेडरल सिस्टम, मतलब कोई सेंट्रल ने कुछ लॉ बनाया या कुछ किया, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है कि वो माने या नहीं माने, मतलब फेडरल गवर्निंग सिस्टम में ऐसा होता है। मल्टीनेशनल स्टेट ऑफन हैव द फेडरल सिस्टम। जो मल्टीनेशनल स्टेट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब क्या, बहुत सारे जैसे डाइवर्सिटीज होते हैं, वैसे स्टेट्स फेडरल सिस्टम वाले स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं। लार्ज कंट्रीज ऑफन अडॉप्ट द फेडरल सिस्टम सिंस कॉन्स्टिट्यूएंट में लीव एरिया रिमोट और लोकेशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं भी रहें, जो लार्ज कंट्रीज होते हैं वो फेडरल कंट्री, ये फेडरल गवर्निंग सिस्टम को ही अपनाते हैं। What ethnicities in a country may lead to the federal system as the rules and law may vary।
An example of this due to the small country of Belgium which balance need to two distinct ethnic group, क्योंकि डाइवर्सिटी ज्यादा था, ethnic groups की दिक्कत थी, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे पावर क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था। ऐसे ही हर दैट मींस द फेडरल गवर्निंग सिस्टम वहां पे थी। द यूनाइटेड स्टेट हैज फेडरल गवर्निंग सिस्टम विद अ नेशनल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस इन कंजंक्शन विद द स्टेट गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और हर दोनों को इंडिपेंडेंटली यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी आपको ये डिफरेंस पता हो गया होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम क्या है एंड फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, गवर्निंग सिस्टम क्या है। इसके बाद जो हमारा आता है वो क्या है, ये आता है कि हमारा जो यूनिटरी, कॉन्फेडरल एंड फेडरल, अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ यूनिटरी क्या होता है। अभी ये देखना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट जितने भी स्टेट हैं, ये क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है, ऑर्डर देता है, हर स्टेट को क्या देता है, ऑर्डर देता है। ये यूनिटरी, नेशनल गवर्नमेंट कंट्रोल लोअर लेवल एजुकेशन पॉलिसी, लैंड यूज, वेलफेयर, फंडिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। यहाँ पे सुप्रीम पावर यही होता है। उसके बाद कन्फेडरल गवर्नमेंट एक होता है। कन्फेडरल गवर्नमेंट मतलब स्टेट हैव कंट्रोल ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन यूनियन जैसे एग्जांपल आपको दिया गया, यूरोपियन यूनियन जैसा हर स्टेट, मतलब जैसे अमेरिका हो गया, सॉरी फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब किसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब इनके द्वारा कंट्रोल हो रहा है। सुप्रीम कौन है, ये लोग हैं, उसको हम बोलते हैं कन्फेडरल गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आता है आपका फेडरल। फेडरल में आप देख रहे हो सेंट्रल के स्टेट के ऊपर अधिकार है, स्टेट का सेंट्रल के ऊपर अधिकार है, दोनों का दोनों के ऊपर अधिकार है, उसको हम बोलते हैं फेडरल। सेड अथॉरिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कंकरेंट पावर, सेंट्रल रीजन्स गवर्नमेंट सुप्रीम इन देयर स्फीयर्स। ये जो है वो अपने स्फीयर में सुप्रीम है, ये अपनी जगह में सुप्रीम है। बात समझ गए, इसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, वही यूनिटरी, कॉन्फेडरल एंड फेडरल डिफरेंसेस, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे और देखना तो इंडियन फेडरेशन क्या है। जैसे मैंने टॉपिक में हमने देखा था इंडियन फेडरेशन, Indian Union was formed on the basis of federalism. The Constitution originally provided the two-tier system of government. जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी, वो कॉन्स्टिट्यूशन टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अभी आगे हम जाके पढ़ेंगे जब हमारा लास्ट टॉपिक आएगा इंडिया में पंचायत राज, वो जैसे लास्ट में एक हुआ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम पंचायत राज म्युनिसिपैलिटी बोले, वो हम देखेंगे कब कैसे ऐड हुआ। उसके बाद लेटर थर्ड टियर वाज एडेड इन द फेडरेशन, फॉर्मेशन पंचायत राज एंड म्युनिसिपैलिटी। समझ गए, इंडिया का फेडरेशन ऐसा है, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, देयर आर टू और मोर लेवल, हमारे जो फेडरलिज्म की फीचर्स हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizens but each tier has own jurisdictions in specific matter, legislative, taxation। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो रूल करेंगे सेम सिटीजन्स को, मुझे मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है तो मेरा कंट्री इंडिया है, मतलब मैं दोनों मुझे रूल करेंगे, कौन, स्टेट एंड सेंट्रल, मगर ये दोनों का टैक्सेशन हो गया, जुरिडिक्शन जो है कहाँ कहाँ कितने क्षेत्रों में इनका अधिकार है वो फिक्स्ड है by the constitutions, right। The existence and authority each tier of government is constitutionally guaranteed, that means इनकी जो authority है वो constitution में लिख दिया गया है, constitutionally guaranteed कि वो कौन कहाँ पे कौन कैसे काम कर सकता है, state या central। The fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल प्रोविजंस है उसको कोई एक गवर्नमेंट चाहे या स्टेट या सेंट्रल चाहे कोई एक चाहे तो बदल नहीं सकता है। सच चेंज रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों को पूछना पड़ेगा। Courts have the power to interrupt the constitution and power of a different level of government। जो कोर्ट है हमारा, जुडिशियरी है, जुडिशियरी कहीं भी एंटर कर सकता है, किसी को कुछ भी पूछ सकता है, कोई कुछ कर रहा है तो आपने देखा होगा जैसे न्यूज चैनल में आता है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, ये सब क्या वो बिना पूछे एंट्री कर सकता है।
उसके बाद सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। दोनों का जो रेवेन्यू सिस्टम है, ये दोनों कहां से इन लोगों को पैसा आएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। The federal system has dual objective to safeguard the promote the unity of the country। इसका फेडरल सिस्टम हमारा जो इसका दो ऑब्जेक्टिव है, क्या है, एक तो हो गया हमारे कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखना है, और एक जो रीजनल डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, मतलब कपड़े में, खाने में, पीने में, बोलने में, हर चीज में डाइवर्सिटी है, इसको क्या करना है, एकोमोडेट करना है और कंट्री की यूनिटी को बजाय रखना है। हमारे कंट्री की फेडरल सिस्टम की डुअल ऑब्जेक्टिव है। आपको पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो यूनिटी कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखना है, दूसरा एकोमोडेशन रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है। डिफरेंट रूट थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड। तो कुछ देखते हैं जो फेडरेशन है वो कैसे फॉर्म होता है। ये दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, एक है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। अभी आप समझो कमिंग टुगेदर क्या है, होल्डिंग टुगेदर क्या है। कमिंग टुगेदर मतलब जितने भी स्टेट हैं एक कंट्री में, मान लो जितने भी स्टेट हैं वो सब स्टेट अपने स्व इच्छा से सब हाथ मिला के एकत्रित आते हैं और बोलते हैं हम इस कंट्री के यूनिटी को बनाए रखेंगे, और हम सब एक कॉमन बोलते हैं ना एग्रीमेंट के तहत सब बन जाते हैं, बन के उसकी कंट्री के यूनिटी को बरकरार रखते हैं, बिगर यूनिटी बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर। ये स्व इच्छा से आए हैं एक यूनिटी बनाने के लिए। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। दिस काइंड is called coming together federation is formed USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री है। यो क्या है, कमिंग टुगेदर की एग्जांपल्स है, मतलब खुद से आए हैं। और द सेकंड रूट इज कॉल्ड व्हाट, होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे स्टेट को जोर जबरदस्ती आपको इंडिया में रहना ही है, मतलब आपको इंडिया के ही आप पार्ट हो, यू आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यू हैव टू बी रिमेन इन द कंट्री, जिसको हम होल्ड करते हैं, जिसको जबरदस्ती होल्ड की जाती है, उसको हम होल्डिंग टुगेदर बोलते हैं। द सेकंड रूट, लार्ज कंट्री डिसाइडेड डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल government। This kind of holding together federation followed by India, Spain, Belgium countries में ये फॉलो की जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर में थोड़ा डिफरेंसेस देख लो। Interdependent states coming together on their own form bigger unit, increase security by pooling sovereignty and retaining identity. All constituent states have equal power, USA, Switzerland and Australia जैसे एग्जाम्पल। होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल भी इस साइड में मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं और यहाँ पे वो है। ठीक है, आज यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।